Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are starting with class 12 maths chapter 1 this is chapter 1, relations and functions. Fine, this chapter you have studied in 11th standard also. There you studied about the Cartesian product of two sets. What do you mean by relation, what do you mean by domain, what do you mean by range of the given sets ऊपर से. And one thing you also studied the functions, some graphs and range and domain of that, and some algebra of the functions, that two functions can be added, subtracted, multiplied and division. All that you have studied till here. Today in this class, in 11th standard, in 12th standard now, we have to extend our knowledge beyond those topics. अब relation पढ़ा था, सिर्फ relation पढ़ा था, how to form relation, what do you mean by definition पढ़ी थी, examples पढ़े थे. Now we will study some extended information about this relation. Means what are the different types of relations. So before starting with my types of relation, देखो चैप्टर का नाम है relation function, means we have to explore the things about the relation and the function. ठीक है, relation function definitions we have studied, but still I'm doing a recap of what do you mean by relation. After that I'll come to what are the different types of relations. ठीक है, तो I'm taking just recap. What do you mean by relation? What do you mean by relation? क्या पढ़ा था आपने रिलेशन के बारे में? It was, suppose I have the two sets A, B and C, and here I have the set, this is A, this is B, and the set is 1, 2, 3. Elements of set B is 1, 2, 3 and elements of set A is A, B and C. ठीक है, तो how to form a relation? That A can go with 1, A can go with 2, A can go with 3. So relation is represented by capital. This you know. Just doing a recap so that आपको पीछे का थोड़ा revise हो जाए. So relations can be of the ordered pair 1, A, 1, A, 2, A, 3, and similarly it can go with the B. B को भी सारा आ सकता है. So B1, similarly B2, B3. And similarly I can go with C1, C2 and C3. ठीक है, means it is the ordered pair. It is the ordered pair. अब आप बोलोगे मैम दिस इज तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये हमने कार्टेशियन पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू सेट्स. बच्चा मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया? रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ओनली. मैंने कब मना किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता? बिल्कुल, definitely this is the Cartesian product. So your relation is nothing but your subset of your Cartesian product. This you have studied. अब इसका एक प्रोडक्ट ना क्या सेट सबसेट भी हो सकता है रिलेशन, या फिर द कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है. सो दिस इज द थिंग. एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन होगी. सो डेफिनेशन इज व्हाट, रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ योर व्हाट, सबसेट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. दिस इज द डेफिनेशन. और हमने क्या पढ़ा था, एक चीज हमने पढ़ी थी व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, एंड द सेकंड वाज रेंज, एंड थर्ड वाज कोडोमेन. अब कोडोमेन तो सिंपल है कि जो भाई जो हमारा सेट बी होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना कोडोमेन. ये तो सिंपल है, ये तो याद है कि जो सेट बी होता है दैट इज सिंपली नथिंग बट माई कोडोमेन. अब डोमेन और रेंज क्या होता है, व्हाटसोएवर व्हाट, जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, सो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड योर डोमेन. व्हाट आई सेड, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर गिवन इन योर रिलेशन. अब जो रिपीटेशन है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट विल बी ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम हियर. देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, तो रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे. यहाँ पे बी बी बी, तो एक बार सिर्फ बी, एंड सी सी सी. सो दिस इज माई डोमेन. व्हाट इज सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन माई व्हाट, इन माई व्हाट, इन माई रिलेशन. ठीक है, अब आती है रेंज की बारी. रेंज क्या होता है, ये फर्स्ट था तो बचा क्या, इसमें सेकंड भी तो बचे है ना अभी. तो दैट इज द थिंग, दैट इज माई रेंज, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ordered pair in my relation, that is my range. So this is what is relation, this is what you mean by domain, this is range, and the last thing is codomain. This was the
recapitulation of 11th standard. What do you mean by relation and some topics, domain, range and codomain. Fine, this was 11th standard only. Now we will start with a 12th standard. Means the first topic is what are the different types of relations. What we'll study types of relations. ठीक है, अब मेरे पास 3 तरह के टाइप्स आते हैं. we'll study one by one. ठीक है, क्या होता है? we have 3 types of relations. One is empty relation. One is empty relation. Second is universal relation. And the third is equivalence relation. Equivalence relation. So these are the 3 topics. These are the 3 types of relation. One is empty, one is universal and one is equivalence. This we will study in detail because इसी से क्वेश्चन आता है और इसी में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पढ़ने होते हैं. इक्विवेलेंस के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी है. वन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव. सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक रिलेशन, एंड द थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन. तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है इसमें जिससे बेस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं. दैट गिवन रिलेशन प्रूव दैट शो दैट इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, या चेक द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी ऑफ द गिवन रिलेशन. ठीक है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है. उससे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी रिलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल रिलेशन. एज द नेम सजेस्ट हियर, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ नहीं होता, विच इज एम्प्टी मतलब नल सेट. और यूनिवर्सल होता है विच कंटेन्स एवरीथिंग. ये होता है विच कंटेन्स एवरीथिंग. तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल. अगर मैं इन दोनों को आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स की बात करूं, क्या होता है एम्प्टी में? लेट ए बी एनी सेट. अगर मैंने कोई भी सेट ले लिया ए, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल आल्सो, डोंट वरी. लेट ए बी एनी सेट. ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या एम्प्टी होना चाहिए. वो एम्प्टी का मतलब होता है कि जो फाई है, फाई कंटेन्ड इन ए क्रॉस ए मीन्स व्हाट? मीन्स no element of A is related to any element of A. मतलब क्या हुआ? A सेट का कोई भी एलिमेंट A क्रॉस A से रिलेट नहीं करता. सो नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंने सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया. मैंने क्या रिलेशन डिफाइन किया बच्चा? यहाँ पे आर लिख लेते हैं. व्हाट आई रिलेशन आई डिफाइंडिंग हियर? द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, मैंने क्या रिलेशन यहाँ पे किया है? ए कॉमा बी सच दैट योर ए माइनस बी should be equal to, let's suppose 6, where a comma b belongs to a only. Are you getting my point? मैंने एक सेट लिया in which I have the 3 elements 1 2 and 3 and defining the relation a comma b ordered pair a minus b should be equal to 6. अब मेरे पास ये 3 एलिमेंट है. क्या इनको माइनस करने पे कभी 6 आ सकता है? If I suppose take 1 comma 2, तो 1 minus 2 is what? minus 1. 2 comma 3, this is 2 comma 2 minus 3 is what? minus 1. और यहाँ की बात करें तो 3 minus 2, 3 minus 1 की बात करें अगर, so it will be 2. क्या कभी भी इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है? क्या कभी भी सेट में, कभी भी इस रिलेशन में 6 आ सकता है? नहीं आ सकता. so R will be here empty set. क्या होगा? R यहाँ पे empty set. so this is called your empty relation. means no element of set A relates to any element of set A itself. Clear? This is called empty relation. इसी तरीके से ये उल्टा है यहाँ पे.
यूनिवर्सल सेट की बात क्या करें, यूनिवर्सल में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, इसमें सब होंगे। यूनिवर्सल मतलब विच कंटेन्स एवरीथिंग आई टोल्ड यू, सो सारे एलिमेंट ए से रिलेट करेंगे, ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, अगर मैंने ये 4 एलिमेंट इसमें लिए एंड आई एम डिफाइनिंग द रिलेशन हियर इज नथिंग बट a plus b is an even number, a plus b is an even number। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं रिलेशन को, a plus b is an, अब ये देखो ये सारे क्या है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली सम ऑफ 2 even number is always an even number। बात समझ में आती है? अब सारे इवन है तो उनका सम भी क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा, तो सब में क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या है, सारे डिफाइन हो सकेंगे, 2 + 4 भी हो जाएगा, 4 + 6 6 + 8 2 + 8 4 6 + 8 6 + 4, या फिर 4 + 8, एवरी एलिमेंट विल हैव ए रिलेशन हियर, सो दिस इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं यहाँ पे इवन की जगह ओड कर दूं तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, दिस विल बिकम द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन। क्यों, क्योंकि कभी भी 2 इवन नंबर्स का सम ओड नहीं होता। अगर मैं यहाँ इवन की जगह ओड कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं तो दिस विल बिकम द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन, बिकॉज सम ऑफ 2 इवन नंबर्स कैन नेवर बी एन ओड नंबर। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। ये समझाने के लिए है, बट द मेन यूज इज ऑफ योर इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंस रिलेशन? नाउ we'll study about the reflexivity, symmetry and transitivity. Have a look of this. Now we'll starting with the equivalence relation. What do you mean by that? Now just see what do you mean by equivalence relation. इक्विवेलेंस के लिए क्या है कि इक्विवेलेंस, कोई भी रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस होने के लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इक्विवेलेंस रिलेशन टू बी एन रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, it should be symmetric and it should be transitive. All the 3 conditions should be satisfied. अब reflexivity, symmetry और transitivity का मतलब होता क्या है? Have a look of this. Reflexive का मतलब होता है, अब relation है, obviously we have ordered pair, ये तो याद रखो कि relation है तो ordered pair तो रहेगा, ठीक है। Let A any set, A be any set, and we have any element of A belongs to capital A। कोई सेट A लिया मैंने और उसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया A, तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि दैट एलिमेंट इज रिलेटेड टू itself also, means this is belongs to my relation. What do you mean by that? अगर मैंने कोई सेट में एलिमेंट लिया है, so that element is related to itself also, or we can say that is, लिखते कैसे हैं इसको, A R A for all A belongs to capital A। बात समझ में आई? This is the meaning कि लिखते कैसे हैं, लिखते इस तरीके से हैं, लिखते इस तरीके से। या तो आप A, A इस तरह से belongs to R लिख लो, where for A belongs to this, या फिर आप A R A, A R A का मतलब क्या हुआ, A is related to itself, A is related to itself, this is the meaning of, और A कहाँ से आता है, A आता है हमारे सेट से, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि इट शुड बिलोंग्स टू इटसेल्फ। एग्जांपल के थ्रू देखिए, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सेट एनी सेट A is 1, 2, any finite set I have A, 1, 2, 2 elements are there, so what relation it will be? Relation will be जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपस में, सब खुद से ही रिलेट होने चाहिए। मतलब 1 है तो ऑर्डर्ड पेयर शुड बी 1, 1, 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर शुड बी 2, 2। कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसे जिसका जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डबलेट है यहाँ पे, मीन्स
इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सपोज मैं यहाँ पे एक और दे दूं आपको, सो इट विल बी व्हाट, तो ये होना चाहिए यहाँ पे 3,1. दिस इज द रिलेशन आई हैव फॉर्म्ड विद दीज 3 एलिमेंट्स. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नाउ रिफ्लेक्सिव. दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं आपसे, सपोज आई गिव यू A इज इक्वल्स टू A, B and C, and if I give you relation is what, I give you relation AB, CC and BB. अब इसमें देखिए A का डबलेट है ही नहीं, AB है, ये A नहीं है, BB का तो है, CC का है. तो हम यहाँ पे पहले वाले, बाद में भले कुछ भी हो, पहले वाले का अगर नहीं है तो हम इसको देखते ही कैंसिल कर देंगे. दैट दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस का तो बात ही नहीं बनती. ठीक है, दिस इज दैट every element of the set should be related with the itself only, then it is called a reflexive relation. If we talk about the symmetric का आपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते आए, व्हाट डू मीन बाय सिमेट्री. जैसे सपोज मैं अल्फाबेट्स की बात करती हूँ, सिमेट्री का मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम चीज होनी चाहिए मिरर के. जैसे P इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ए सिमेट्रिकल होता है, ये मतलब है सिमेट्री का. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर. क्या कहता है, वो कहता है if I take ordered pair A, B belongs to what? If A, B belongs to R, for all A, B belongs to, अलग अलग किससे बिलोंग करेंगे, सेट A से बिलोंग करेंगे, इसी सेट A से बिलोंग कर रहे हैं. तो इसका मतलब है सिमेट्री कहती है कि अगर A, B belongs to R करता है, so we should also have B, A belongs to R for all A, B belongs to A. This is the meaning of symmetry कि अगर A, B है तो B, A भी आना चाहिए. Or we can say that A, R, B should implies B, R, A for all A, B belongs to A only. मतलब A is related to B, so B should also relate to with the A. सिमेट्री होनी चाहिए. अगेन इफ आई सी द एग्जाम्पल, सपोज A I have 1, 2, 3, so what should be R? R should be what? This is I'm making for to be symmetric. अगर सिमेट्रिक नहीं बनाया तो आप कुछ भी उसमें अरेंज कर दो जो कि जिससे कि वो सिमेट्री ना रहे. अब इसमें अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, सपोज आई एम टेकिंग दीज टू, 1, 2 लिया है तो इसका क्या उल्टा भी होना चाहिए, 2, 1 भी होना चाहिए. बात समझ में आ रही है. Similarly, if I take 2, 3, अगर 2, 3 लेती हूँ तो 3, 2 भी होना चाहिए. This is relation we can make from these elements to be symmetric. अब आप बोलोगे कि मैम एक और ऑर्डर्ड पेयर बनता है 1, 3 का, बनता है तो आपने वो क्यों नहीं लिया, वो तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा. अगर यहाँ पे ये इतना है, अगर ये अभी सिमेट्रिक है, लेकिन अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर देती 1, 3, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता. क्यों? इसकी सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री है, बस इसकी सिमेट्री नहीं है. ठीक है, तो हमें सिर्फ वो देखने हैं जो रिलेशन में गिवन है, बाकी भले बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, वो उसको लीव दैट. ठीक है, तो अगर ये अंदर होता तो मैं कहती कि सिमेट्री नहीं है, बट दिस आई एम नॉट टेकिंग, सो आई से ओनली दिस, क्योंकि जितने दिए हैं उनका तो है ना, उनकी तो सिमेट्री है. सो दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री. क्लियर है? नाउ द लास्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या कहता है, नाउ वी हैव A, B and C belongs to capital A. Now what it says if we have AB and BC belongs to R. अब याद रखो पेयर किस तरीके से लेना है. सेकेंड एलिमेंट है, जहां पे ये खत्म होता है वहीं से स्टार्टिंग होनी चाहिए सेकेंड ऑर्डर पेयर की. इसका सेकेंड एलिमेंट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर. क्या कहता है, अगर A, B and B, C belongs to R, so this implies what, that A, C, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, A, C should also belongs to R. That is A, R, B and B, R, C implies A, R, C. बात समझ में आ रही है? A, B and B, C बिलोंग कर रहे हैं तो A, C भी करना चाहिए.
if I talk about again for the example, suppose A is 1 2 3, ठीक है. तो any relation to be transitive, what kind it should be? It should be suppose 2, 3, 3, 1. अब देखो मैंने क्या लिया 2, 3 और दूसरा मैंने लिया है 3 से स्टार्ट किया है 3, 1. तो इसमें क्या आना चाहिए ट्रांजिटिव में? ट्रांजिटिव में आना चाहिए 2, 1. तो ये आ गया 2, 1. तो ये रिलेशन बन गया क्या? ट्रांजिटिव बन गया. एक और पेयर अगर मैं डालूं इसी में, अगर मैं इसमें डालूं 1, 2 और 2 से ही 2, 3, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए इसमें? इसमें आना चाहिए 1, 3. ठीक है. देखो शुरुआत कर लो कहीं से भी. 2, 3, 3, 1, तो 1, 2, 1 है. 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 है. ठीक है. अभी ये है. अब आप बोलोगे मैम मैं तो इसको लेती हूँ 1, 2, 1 को लेती हूँ और 1, 2 को लेती हूँ, क्योंकि 2, 1 और 1, 2. तो फॉर टू बी ट्रांजिटिव वी हैव विल ऐड वन मोर एलिमेंट 2, 2. बात समझ में आ रही है? दिस इज द थिंग. ठीक है. अब अगर आप इन दोनों को लेते हो तो 1, 2, 2, 2, तो इट विल बी व्हाट? वी शुड हैव 1, 2 ऑल्सो इन दिस. क्लियर है? दिस इज द थिंग. अब जैसे अगर मैंने लिया 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 भी होना चाहिए. ये रहा 1, 3. सो दिस विल बी द एग्जाम्पल फॉर ट्रांजिटिव. ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं. अगर आप उसी में देखोगे जो भी आपको रिलेशन में गिवन है, जो नहीं गिवन है दैट यू विल नॉट सी. क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. एंड लास्ट जो मैंने भी बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फंक्शन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, कोई एक भी एलिमेंट के लिए, सो दैट रिलेशन विल नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अंडरस्टूड? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एंड प्लीज सी द वीडियो कम्प्लीटली, ताकि आपको चीजें सारी समझ में आए. आप लोग आधा देखते हो तो आपको चीज समझ में नहीं आती. So this is the thing. Have a look of this and just practice some of the examples of any relation to an equivalence relation. The next class we will start with the extension of this. Fine. Till then you keep practicing. Thank you so much.